Today we will talk about a very important thing, and that is something you always use whenever you are going to meet anybody for the first time, be it your interview, be your interview for a job, or be it your an interview for your college admission, or if you are introducing yourself to some professional gathering, to a person, or it could be a gathering more than one person also, right? So I will suggest certain basic steps. By using them, you will be able to speak at least 10 to 15 minutes flawlessly. So the ball remains in your court. The major challenge is whenever you see an interviewer, they start asking you question, you give some answers, and within 10 to 15 seconds, the ball goes into the interviewer's court. वो जो इंटरव्यूअर ना उसके पाले में चली जाती है और फिर हमें समझ नहीं आता करना क्या है. तो मिनिमम 15 से 20 मिनट आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. ये फर्स्ट मीटिंग में पहली सबसे चीज यही होती है, अपना इंट्रोडक्शन देना. तो मैं जो इंट्रोडक्शन दूंगा इसमें आप कुछ चीज घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो. यू कैन ऐड सर्टेन थिंग्स एंड यू कैन आल्सो रिमूव सर्टेन थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म जहां पे आप इंटरव्यू देने वाले हैं या जहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले, राइट? सो हियर आई विल से इंट्रोडक्शन. मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही बोलनी है, बट हाँ ये एक मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो शेयर किया है बच्चों के साथ या आप सबके साथ, वही मैं दोबारा यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है? और मैंने देखा है इसके यूज करने से बहुत हेल्प होती है लोगों को कई चीजों में. सो आप भी यूज कर सकते हैं. सो अगेन कोट एंड कोट, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही बोलना है. सो व्हेन यू गिव इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? Yes, you talk about your name. My name is Mohan. Okay, my name is Mohan. My name is Mohan dash 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 dash. I don't believe into that. So talking about your caste and all these things, different people might have different aspects, but I believe we all belong to one clan only. So right, because I mean I won't get into further, but yes, your first name is always good until someone asks you for your last name or caste or something, right? That creates some division. So that's why I'm against the division. So your first name is this. My name is Mohan. Done. Second thing, what do you say? I belong to a particular place. So I live in Mumbai. I live in Calcutta. I live in Punjab, Faridabad, anywhere that you want to say. Okay? That's it. Done. Then you talk about your family. Little bit means certain things only. We are a family of, according to your wish, 4, 5, 6, whatever you want to say. My father is a teacher. My mother is a businesswoman. My brother is a उल्टा कर दिया. अच्छा उल्टा कर देता हूँ. अच्छा आपको ये पसंद है, ठीक है. My father is a businessman and my mother is a teacher. ठीक है? और क्या कह सकते हैं? ठीक है, अभी सीधा कर दिया. ओके, प्रभजोत सेज की सर सीधा कर दिया. देन ठीक है, वी आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल. अपनी फैमिली के बारे में बता दिया. अब डिटेल में नहीं जाना है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. until unless they ask you. वी आर अ फैमिली ऑफ 4, पेरेंट्स आर वर्किंग, और तो मतलब मैं हूं और मेरा सिबलिंग है जो भी, वो पढ़ रहा है या वो जॉब कर रहा है. दैट्स इट, डन. इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट. आफ्टर दैट आप क्या बोलते हैं? यू टॉक अबाउट योर education. Okay, now you start with your, so when you talk about your education, you need to focus on your latest degree. So let's say you are a master's in business administration. So I have completed my master's in business administration or application, sorry. Is it administration or application MBA? पक्का? चलो इतना तो आप सबको पता है. Thank you so much. So I am an MBA in finance. I am an MBA in marketing. I am an MBA in what? HR, finance, marketing. HR is for human resources, है ना? तो ये आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं. ठीक है? Start with your latest. I am an MBA into this thing. I scored this much percentage and I am from this much universe or this university. अच्छा, अब उसमें यहां तक क्लियर है. अगर ये जो यूनिवर्सिटी है ये कोई टॉप
रेटेड यूनिवर्सिटी है कंट्री की तो बहुत फायदा है। अगर आप लड़कों की रेटेड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसको बोल करके अपने 2 सेकंड आप कहीं और गवाना चाहें। इट्स ओके, आई एम एन एमबीए एंड आई स्कोर्ड दिस मच मार्क्स, डन। देन अगर आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं तो आई थिंक यू नीड नॉट टू गो फर्दर। नहीं है, यू कैन टॉक अबाउट योर बैचलर्स ऑल्सो। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, आई एम अ कंप्यूटर साइंस, I'm a BTech, Bachelor of Technology in Computer Science, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। या I have completed my Bachelor's into Humanity, मैंने BA किया था, ऑनर्स कोई सब्जेक्ट रहा होगा उसके साथ मैंने किया। आप ऐसा बता सकते हैं from such and such university and scored this much. I think this is sufficient over there. अगर आपने अभी 12th ही किया है तो आप आ सकते हैं I have completed my 12th class from from this CBSE board and I scored 99%. Amazing. आजकल तो ABC ग्रेड भी होते हैं ना, क्या होता है अभी, क्या बोलते हैं उसको, CGP होता है ना। हाँ, मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था कभी परसेंटेज हुआ करते थे। So you can talk about as per your convenience and as per your current situation, ठीक है जी। एजुकेशन इतना, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है। Then you need to talk about, इसी के पार्ट है achievements in education, ठीक है। I have been a school captain. I have represented my school or my entire zone into nationals. I've been an athlete. I played nationals such and such year. I was an athlete. I was doing like what, 5 kilometer race, or I was into that baton run, you call that relay race. कुछ भी आप बोल सकते हैं। I was into the shot put. I was into the javelin throw. Suppose आप नीरज चोपड़ा की राह पे चलना चाह रहे हैं, the golden man, amazing guy. He's just an amazing guy. I just love this guy. So you can talk about your achievements. I took participation into debates, school debates, house competitions. ये achievement आपको बतानी है. You need to showcase your achievements. आप नहीं बताओगे तो संसार को नहीं पता चलेगा, ध्यान रखना. It is you who need to represent yourself. So you need to showcase your achievements जो आपने किया, ठीक है जी। एजुकेशन होगी, उसके बाद अब सपोज कीजिए एजुकेशन होगी, अब आप अपना जॉब पे आ गए हैं, सो आप क्या बोलेंगे उसके बाद? Then you need to focus on your work experience. Again, सपोज आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप इसके अंदर 3 कंपनियां बदल चुके हैं, ठीक है। यू हैव वर्क फॉर 5 years एंड यू हैव चेंज, और यू आर वर्किंग इन योर थर्ड कंपनी। इससे पहले 2 कंपनी आप चेंज कर चुके हैं, तो तीसरी कंपनी होगी। सो वर्क एक्सपीरियंस आप बोलेंगे यहाँ पे इंश्योर करना। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली ज्यादा स्विच नहीं होना चाहिए, ये एक गोल्डन रूल है। मतलब थोड़ा टाइम आप रुके, उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आता है कि आप तो यूर जस्ट हॉपिंग इन बिटवीन द जॉब्स होते हैं। मतलब आज यहाँ कर ली, 6 महीने बाद यहाँ कर ली, आगे चल के लॉन्ग रन में चैलेंज आता है, आपको इसको जस्टिफाई करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। हर बार नहीं होता बट आ सकते हैं, तो हम उसको अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। सो वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव टू अगेन स्टार्ट विद योर लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। आई एम वर्किंग इन Adobe India as a managing director, let's say, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब ये आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द राइट कि ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, तो आई एम वर्किंग ओवर देयर एट सच एंड सच पोजीशन। उसके बाद आप इसमें जरूर बताएं क्या, यू नीड टू टॉक अबाउट योर KRAs। KRA क्या होता है? की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। स्पेलिंग देखना सही लिखिए, गड़बड़ होगी शायद, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। सो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, सो KRA मतलब आपका जो काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उनके बारे में बात करनी है। सपोज आप ऑपरेशंस में हैं और आपकी जॉब है पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। लोगों का स्कोर कार्ड बनाना, लोगों की प्रोडक्टिविटी चेक करना, ठीक है। कौन व्यक्ति प्रोडक्टिविटी कितना दे रहा है, एफिशिएंसी चेक करना, क्वालिटी चेक करना, कंप्लायंस का आप अगर ध्यान रखें, कोई भी डिवीजन हो सकता है, आप क्वालिटी में अगर है तो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपने डिवीजन के हिसाब से एक एक चीज को आप बताएंगे कि आप उसको ऐसे ले सकते हैं कि मेरा काम ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, इस तरह के 3-4 चेक पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है। या अगर आपको इसमें चैलेंज आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे आप बताते हैं आप टेली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो आप सुबह जाकर जो करते हो उसको एक टास्क बना लो। सबसे पहले जाके सिस्टम खोलता हूं, मैं कुछ ईमेल्स को चेक करता हूँ, ठीक है। सो माय KRA इज
टू इंश्योर टू चेक क्लाइंट ईमेल्स कि क्लाइंट ने कोई ईमेल तो नहीं की है, अगर की है उसको फिर मैं आगे चेक करके, सपोज आप अगर किसी मैनेजमेंट रोल में हैं और आपके साथ 2-4 लोग और काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ठीक है मुझे वर्क एलोकेट हुआ है, मैं उस वर्क को, अब अगर कोई क्लाइंट ईमेल है, मतलब डिपेंड करेगा, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, डिपेंड करेगा आप किस सिनेरियो में किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपका वर्क कल्चर कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आप मैनेजमेंट में हैं, तो आपके साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं, आपको इनको वर्क एलोकेट करना है, तो आप बोलेंगे मैं पहले क्लाइंट का मेल चेक करता हूँ, वर्क फ्लो देखता हूँ क्या क्या आज का टास्क है, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास रिसोर्स कितनी है, मेरे पास 4 रिसोर्स आज रखे हैं, मतलब कितने लोग काम करने वाले हैं, आज 4 प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा उन चारों के अंदर, चारों के साथ ये जो मेरे पास टास्क आया है, वर्क फ्लो है, उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये हो गया, फिर प्रीवियस डे का जो वर्क फ्लो, उसमें कोई क्वालिटी फ्लो आया, कोई कंप्लायंस इशू आया था, उसको मैं चेक करता हूँ, फिर मैं मेंटेन करता हूँ कि हाँ टीम मोटिवेटेड रहे, मतलब ये बहुत सारी चीज हो सकती है। और फिर मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं टीम का ग्रूमिंग भी कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाता हूँ मैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो उसकी स्किल सेट भी और बढ़ती रहे, बेहतर होती रहे, वो मोटिवेटेड भी रहे, वो ग्रूम भी कर रहा हूँ उसको। तो इस तरह से आप अपने KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज पे भी बात कर सकते हैं। जो भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आप करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, बुराई नहीं KRA के साथ, KRA के साथ में का पार्ट नहीं होगा वो। ठीक है जी, ये हो गया। जब यू आर डन विद योर फर्स्ट कंपनी और द लेटेस्ट कंपनी रादर, देन यू कैन टॉक अबाउट लेट्स से योर प्रीवियस कंपनी। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, यू नीड टू टॉक अबाउट योर प्रीवियस कंपनी। अब आप बोलेंगे आई वर्कड इनटू दैट कंपनी फॉर सच एंड सच पीरियड, इतने समय तक मैंने उस कंपनी में काम किया। अगेन वहां पे बताएंगे मैं वहां पे इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा था, मेरे वहां पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज ये थे, और मैंने वहां पे ये चीजें काम किया, इन चीजों पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज थे। उसके बाद आपको कई बार ये हो सकता है कि आपको ये बताना पड़े कि आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा। सो रीजन बिहाइंड लीविंग योर प्रीवियस कंपनी, तो हमेशा ध्यान रखना ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ल्यूक्रेटिव रीजन होना चाहिए, इसको सुन करके लगना चाहिए कि हाँ ये एक जेन्युइन रीजन था। ठीक है, इस विषय में मैं और वीडियोस बनाऊंगा कभी, तो आपको शेयर कर दूंगा मैं कि हर टॉपिक पे क्या हो सकता है। बट हाँ, इसलिए हमें बेसिक केस पे काम करना है कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जब आप किसी कंपनी को छोड़ रहे हो तो वैलिड रीजन हो, वरना मत छोड़ना। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, है ना, अगर वो कंपनी के अंदर आपको ग्रोथ मिल रही है, लर्निंग है, तो कोई रीजन नहीं है छोड़ने का, ग्रोथ भी है, लर्निंग भी है, दैट्स द मोस्ट ऑफ द पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन, है ना। सो जॉब सेटिस्फैक्शन है, कई तरह के फैक्टर्स हैं, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू टेक अ डिसीजन टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, डज इट मेक सेंस? ओके जी, वेरी गुड। सो उसके बाद इस तरह से सपोज अब आप आ गए अपनी पहली कंपनी में, तो वहां पे भी सेम चीज रहेगी, मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा था, ये मेरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज थे, और मैंने ये सब सीखने के बाद मुझे आगे ग्रो करना था, मैंने वो कंपनी छोड़। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर चेंज कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ये नहीं ठीक है आज ये कंपनी ज्वाइन कर दी दूसरी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करता है। वी नीड टू बी लॉयल, राइट? इट हैज टू बी ईदर वे, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी लॉयल विद यू एज वेल, है ना, बट उनको मैं नहीं बता सकता, मैं आपको बता सकता हूँ, राइट? सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट यस यू आल्सो नीड टू बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन वे आर वर्किंग, दैट्स हाउ वी वर्क एज अ टीम एंड दैट्स हाउ वी ग्रो टुगेदर। मैं भी ग्रो करूंगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, सो दैट्स एन आइडियल सिचुएशन। आप अपनी यहाँ पे फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे अगेन इसी का पार्ट रहेगा, एंड नाउ यू विल टॉक अबाउट योर achievements in this current organization. Let's say I suggested certain lean ideas, जैसे क्वालिटी होती है, क्वालिटी के अंदर कुछ सजेस्ट किया मैंने, कुछ प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स मैंने बताए कि लोग ना एक्सेल पे काम कर रहे थे, मैंने पूरा नहीं यार ईआरपी पे काम कर लेते हैं। ठीक है, या सपोज एक्सेल पे मतलब मैनुअल काम कर रहे थे, एक एग्जांपल ये लेता हूँ, ईआरपी इज अगेन सब्जेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल नॉट, लोग मैनुअली काम कर रहे थे, शीट्स काउंट कर रहे हैं कुछ भी। सो मैंने लोगों को सजेस्ट किया, कुछ एक्सेल फॉर्मूलाज बना करके दिए, और मैंने देखा जो काम 10 घंटे में हो रहा था, वो उस मैनुअल जो हम काम कर रहे थे, एक्सेल पे काम कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करने से, कुछ फॉर्मुलाज और कुछ मैक्रोज होते हैं, इनको यूज करने से वही काम चंद मिनटों का हो गया। ठीक है, सो मैंने ऐसा एक आइडिया दिया, इससे हुआ क्या, फिर आपको उनको प्रूव करना है कि इसका बेनिफिट क्या हुआ, कि मैंने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के वर्क आवर्स को बचाया। टाइम इज मनी, पैसा तो है, पैसा बचाना एक बड़ी बात, अगर आपने टाइम बचा दिया ना, तो आपने पैसे से भी ज्यादा चीजें बचा दी। सो आई
improved this process. ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट. फिर आप बोल सकते हैं I got a award for best performer of the year, best performer of the quarter, best performer of the week, day, जो भी आपके वहां पे होता हो, जो आपने अचीव किया आप उसको बोल सकते हैं. ठीक है, आपने अपनी टीम को ग्रूम किया. मेरी टीम से जब मैंने उनको ग्रूम किया, मैं उनका टीम लीडर था. उसके बाद जैसे ही मैं आगे मैनेजर, मेरी टीम से 3 लोग नए टीम लीडर निकले जिन्होंने मुझे एज एन एसोसिएट ज्वाइन किया था. तो मेरी ग्रूमिंग स्किल्स कितनी अच्छी होगी कि आई एम अ वेरी गुड पीपल्स मैनेजर. मैं लोगों के टास्क को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ ग्रो करने के लिए. कितना इंपॉर्टेंट चीज है. ये सब हमें ध्यान देना चाहिए. जो हम इन सब चीजों को करेंगे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, करंट रोल में, तो आप देखेंगे ये चीजें अपने आप होंगी. दैट्स हाउ वी ग्रो. एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर जो हम बात करें, वो लोगों के काम को मैनेज करता है, और लीडर क्या करता है, अपनी टीम को ग्रूम करता है ताकि वो आगे बढ़ सके. नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करता है जो उसको आते हो, और खुद भी अपनी चीजें सीखता है. लर्निंग पे तो हमेशा फोकस करना चाहिए. सो यू कैन फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स. ये तो मैंने लिमिटेड बोला है. आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे. बारीकी से देखना शुरू करो कि मैं क्या कर रहा हूं. राइट. वंस यू आर डन विद योर वर्क एक्सपीरियंस, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? नेक्स्ट विल पुट इट ओवर हियर. देन वी टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ. सो आपकी कुछ स्ट्रेंथ रही होगी. नाउ दिस इज वेरी स्पेक्टिकल. ये बहुत सब्जेक्टिव है. हर व्यक्ति की अपनी एक डिटेल स्ट्रेंथ होगी. मेरी स्ट्रेंथ ये है कि आई एम अ वेरी गुड पीपल्स मैनेजर, और आई एम अ वेरी गुड टीम वर्कर. आई नो हाउ टू बिल्ड अ टीम, आई नो हाउ टू वर्क इन अ टीम, एंड आई नो हाउ टू गेट माय वर्क डन विद माय टीम, बाय माय टीम. ठीक है जी. दूसरा हो सकता है आई एम वेरी गुड इनटू एक्सेल, आई एम वेरी गुड इनटू सम सॉफ्टवेयर, आई एम अ वेरी गुड प्रोग्रामर, आई एम अ वेरी गुड कोडर. कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. आई एम अ वेरी गुड टेली ऑपरेटर, आई एम वेरी गुड इनटू अकाउंट्स, आई एम वेरी गुड इनटू एचआर, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा मुझे आता है. मैं बहुत ज्यादा अपने टीम का ध्यान रखता हूँ. ठीक है. ऐसे अलग अलग स्ट्रेंथ आपके हो सकते हैं. मेक श्योर वो जो आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऐसी हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे हेल्प करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बिलीव हो कि यार अगर मैं इस व्यक्ति को हायर करता हूं, इसको मैं अपनी टीम में लाता हूं, तो मेरी जो टीम है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ हो, एड ऑन इफेक्ट हो जाए. राइट. दैट्स इंपॉर्टेंट. इसके बाद आप बताएंगे अपनी वीकनेसेस. अब मेरे हिसाब से, अगर मेरा साथ है, एक से ज्यादा वीकनेस होनी नहीं चाहिए व्यक्ति के अंदर. एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, हम एरिया पकड़ेंगे जहां इंप्रूव करेंगे, बट वीकनेस जिसको मानना है मतलब एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और अगेन वो वीकनेस ना एक आइडियल, अगर मैं किसी कंपनी को रन करता हूं और मैं चाहता हूं मेरी टीम में आए, तो अगर वो वीकनेस ही बोलता है, मैं चाहूंगा उसकी वीकनेस ऐसी हो जो मेरे लिए पॉजिटिव हो. उसकी तो वीकनेस है, बट वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी टीम के लिए एक पॉजिटिव, एक वो पॉजिटिव बंदा बन के आए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप लोग देंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्कहॉलिक. अब वीकनेस, सर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ. तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ यार ये तो वीकनेस तो है, काम ही करता हूँ 24 घंटे, बट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन मेरा एक और दृष्टिकोण है. मेरे हिसाब से अधिक वर्कहॉलिक होना भी मेरी टीम के लिए अच्छा नहीं है, कि वो व्यक्ति फिर क्या होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा. अब इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होने वाला है. या बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ. अगर मैं 24 में से 18 घंटे ऑफिस का काम कर रहा हूँ ना, तो शुरू में तो जब तक मुझे ग्रोथ लेनी है, मैं बहुत जबरदस्त काम करता हूँ और अच्छा लगेगा सबको, जब तक इंडिविजुअल. लेकिन उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ भी होगी, मेरी फैमिली होगी. आज अगर सपोज मैं अनमैरिड हूँ, कल मेरी मैरिज होगी, मेरे बच्चे होंगे, बीवी बच्चे होंगे, तो उनको क्या होगा? आई विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू माई फैमिली. मेरे पेरेंट्स होंगे, उनको टाइम नहीं दे पाऊंगा. मेरे रिलेटिव्स होंगे, भाई बहन सिबलिंग्स होंगे, उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. तो क्या होगा? मेरे इंटरपर्सनल लिंक्स जो होंगे, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होंगी, सारी बिगड़ेंगी. मतलब बहुत सुखद नहीं रहेंगी. और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये चीजें मेरे मूड को इम्पैक्ट, आज नहीं तो कल मूड को इम्पैक्ट करने वाली हैं. और जब ऐसा होगा तो मेरा एज अ पर्सन, मेरा व्यक्तित्व पे असर पड़ेगा. और जब मेरी पर्सनैलिटी पे डिफेक्ट आना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे वर्क में आएगा. तो अगेन, अगर मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के चलने वाला है, कोई मैनेजमेंट में हूं, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, वर्कहॉलिक तो नहीं होना चाहिए. आपको लिमिटेड टाइम में काम करो, जो टाइम है उसमें 100% दीजिए, है ना. ये एक अलग दृष्टिकोण है. तो ये आप भी देख सकते हैं हाउ इट वर्क्स, है ना. सो दैट्स, ये बहुत इंडिविजुअल होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस. तो इसमें कुछ सजेशन नहीं होते, आप सोचेंगे, बट हाँ मैंने बता दिया, वो पॉजिटिव आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए और टीम के लिए. इट वर्क्स. वंस यू आर डन विद योर वीकनेस, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट योर हॉबीज, राइट.
आपकी कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद आती है और जब भी खेलना शुरू कर सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं। जैसे चेस मेरी बड़ी जबरदस्त हॉबी है, मुझे जब टाइम मिल जाता है, कुछ नहीं होता तो मैं चेस बोर्ड लेकर के बैठ जाता हूँ, और कोई मिलता है कहीं जाता हूँ उसका चेस खेलना शुरू कर देता हूँ। क्या आई एम स्टडीइंग आइडियल, सो आई हैव डाउनलोडेड सर्टेन एप्लीकेशंस। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन खेलने के लिए, बट हाँ, sometimes if you are leisure and if you want to get into that, you have leisure time, if you are free, then you can use that. So मैं उस चेस को खेलता हूँ, मेरी क्या हॉबी है। या आप बोल सकते हैं ठीक है सर, मेरे को ना संगीत सुनना बड़ा पसंद है, तो मैं कुछ फ्लूट बांसुरी सुनता हूँ, बड़ा मजा है, बांसुरी कोई बजाता है तो कुछ ऐसा ना बड़ा मधुर लगता है, रिलैक्स लगता है माइंड पे एकदम। तो ऐसी कोई भी हॉबी जो आप, जिसके बारे में आपको देखिए, हॉबी मतलब आपकी पसंद की चीज, आपके मन के अनुसार चलने वाली चीज, तो आपको मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको उसके बारे में A to Z पता होना चाहिए। यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, राइट। सो इससे रिलेटेड आपने जो भी हॉबी बोली है, ध्यान रखिए, कहीं भी आपने बोल दिया दिस माय हॉबी, तो उससे रिलेटेड व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन करे, हमें प्रयास करना है कि हमारे पास उसका उत्तर होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन दैट, तभी तो हॉबी हमें, क्योंकि उसका इन एंड आउट पता है। तो इसलिए बी जेन्युइन, एक स्टेटमेंट है मेरी, बी जेन्युइन, जो वास्तविक है वही बोलना। उठाए बोला आई लव टू प्ले क्रिकेट, अच्छा ठीक है चलो, गली क्या होती है ना, स्क्वायर ड्राइव क्या होती है, ये क्या होती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी वेरी जेन्युइन, जो है वो बोलिए। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, लाइफ में करना क्या है जी हमें, गोल। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो मुझे समझ आता है और ये चीजें हेल्प करती है कई बारी, तो मैं गोल को ऐसे देखता हूं कि मैं हमेशा दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। एक रहेगा शॉर्ट टर्म गोल, एक रहेगा लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई एक बच्चा है, वो बोलता है जी मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, या मैंने एजुकेशन लेनी है, ग्रेजुएशन हो गई है, मुझे मास्टर्स करनी है। और वो बोलता है कि ठीक है, मास्टर्स के लिए ना कोई स्पेसिफिक कोर्स है जो सपोज बाहर करा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, विदेश में करा रहे हैं, ठीक है जी। तो बोलता है मुझे तो IELTS एग्जाम देना है, और उसकी इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो रखी तो क्या करेगा, ठीक है मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा कि मैं अभी अपना कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूं, उसके बाद में नॉर्मली IELTS PT इस तरह के एग्जाम होते हैं, है ना, ये उल्टे रख दिया, IELTS इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंटरनेशनल, अगेन उल्टा लिख दिया, सही तो लिखा था, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। सो IELTS का एग्जाम क्लियर करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, देन आई विल गो एंड गेट माय सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जाकर एडमिशन लूंगा 2 साल पहले। ये मेरा लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म गोल है। एक मतलब अभी इनिशियल शॉर्ट क्या हो जाए, कॉम स्किल्स पे काम करना और IELTS का एग्जाम क्लियर करना, ये आपका इनिशियल गोल हो गया। 3 महीने 6 महीने के अंदर आप कर लेंगे। अगला फिर 6 महीने कोई शॉर्ट टर्म, अगर कोई करियर गोल है, ऐसा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है आपका, साल भर का 6 महीने का, आप जाके मास्टर्स कर रहे हैं, वहां पे होते हैं कई तरह, 2 साल बाद कर लेंगे। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वंस आई कंप्लीट माय एजुकेशन आई वांट टू कम बैक, एक एक्सपोजर लूंगा मैं, देन आई वांट टू कम बैक टू माय कंट्री, देन आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। सपोज मैं MBA फाइनेंस करके आ रहा हूं, और उसके बाद में जब मैं सीख लूंगा, ऑनर्स वगैरह कुछ जैसे यहाँ पे लिया था मैंने ग्रेजुएशन में, मैं वहां से सीख के आगे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले लिया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करके आ रहा हूँ। यहाँ पे आकर के मेरे फादर का बिजनेस है जी, मैंने उसको फिर और नए आयाम उसमें जोड़ने, आई वांट टू ऐड ऑन मोर एट्रीब्यूट्स ओवर देयर, तो मैं उसको और आगे एक्सपेंड करूंगा, या खुद अपना एक नया वेंचर स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या होगा लॉन्ग टर्म गोल, अगले 10 साल के अंदर मुझे एक मिनिमम 50 एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ वाली एक अच्छी खासी एक कंपनी खड़ी करनी है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल होता है अगले 5 से 10 साल के अंदर। So that's how you define your long term goals. Again, your goals are again subjective, ये आपके इंडिविजुअल गोल्स होंगे, बट हाँ जो गोल हो उसको जेन्युइन रखना है। दूसरा, अगर नहीं है तो गोल बनाओ, पहले नहीं है तो सबसे पहले काम कर रहे हैं, वी नीड टू हैव अ गोल, विदाउट गोल्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, राइट, वी कैन मूव फॉरवर्ड, वी नीड goals for everything, and goals without dedication again doesn't work, discipline doesn't work, we need discipline, we need dedication. If you have discipline, if you have dedication, believe me, you will be able to achieve your goals. Persistence, लगातार काम करना है. So this is how I would suggest that if you sit in an interview, or if you sit for any generic discussion where you need to introduce yourself, this is how you can initiate your talks.
और इतना मैंने सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर बोला है, तो मेरे ख्याल से मुझे तकरीबन 20-25 मिनट शायद लग गए होंगे इसको बोलने में, 15-20 मिनट शायद हो गए हैं, है ना। सो अब इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए कम से कम आपको नहीं लगता कि आप आधा घंटा तो बोल सकते हैं अगर इन सब चीजों के ऊपर ध्यान से आप सोचेंगे। यू गेट plethora ऑफ पॉइंट्स टू टॉक अबाउट, ठीक है जी। सो इसके हिसाब से अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ और चीज है जो यहाँ पे मैंने मिस किया, आपको लगता है नहीं सर ये भी ऐड करना चाहिए मैंने, यू कैन डू दैट। आर वी गुड टू गो? एनी क्वेश्चंस? यू हैव अ क्वेश्चन? यस प्रदीप। Salary. Salary is not a part of introduction. Salary is something that if you are going to switch your job and if you want to apply for another job, then the HR will discuss it with you. वो एक अलग चीज है। हम सैलरी किसी को नहीं बताते इंट्रोडक्शन में कि मैं आज 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ, मेरी ये इंडिविजुअल चीज है। सैलरी तो वैसे भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। कॉर्पोरेट में कहते हैं इट्स नॉट एथिकल टू शेयर योर सैलरीज विद एनीबॉडी, है ना। So when I used to work into corporates, ऐसे होता है, सैलरी तो किसी से शेयर भी नहीं करते। कितनी सैलरी? मेरी सैलरी जी, मेरी मर्जी में कमाता हूँ। ओके, वी डोंट शेयर द सैलरीज, राइट। हाँ, ये एचआर के साथ डिस्कस करोगे, डिपेंड करेगा लास्ट में। बट ये जो डिस्कशन हमने किया, ये जेनरिक इंट्रोडक्शन अगर किया जाए आपके बारे में, एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बात करें, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद। आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस, but yes, if interviewer asks you a question, what is your weakness, you should tell them. But yes, again, अगर कोई ऐसी weakness है जो आपको लगा उस पर काम करो, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट करो, बताओ कि ठीक है मेरी एक वीकनेस है। जैसे मेरी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये ना बहुत सारे लोगों का इंटरनेट पे आप चेक करेंगे तो शेयर की होगी उन्होंने अपनी वीकनेस। तो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है आपकी क्या वीकनेस है, आप लोगों को सुनिए, फिर आप रिलेट करना क्या इनमें से कुछ ऐसा तो नहीं जो आप भी कर रहे थे, वो चीज आपको हेल्प करेगी। बहुत इंटरनेट को हम गूगल को सर्च करेंगे और हम लोगों को सुनेंगे, तो अगर हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमारी क्या वीकनेस है, तो हम लोगों को सुने, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब लगभग एक ही समाज, एक ही परिस्थिति में काम कर रहे हैं, है ना, एक ही कल्चर है, लगभग कल्चर तो है डिफरेंट है, मतलब वर्क कल्चर एक ही है, वो प्रोफेशनली ज्यादातर चैलेंजेस सेम ही आते हैं, कहीं पे टीम मैनेजमेंट है, कहीं एसएलए है, कहीं पे टास्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, इन चीजों में ना। तो हम लोगों को सुने कि भाई उनके क्या चैलेंज आ रखे हैं, उनकी क्या वीकनेस है, फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ शायद मेरा भी तो कोई ऐसा वीकनेस है, वी कैन टॉक अबाउट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, यस, आई एंश्योर, ये एक एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पहले, कई साल पहले पढ़ा है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आई समटाइम्स आई बिकम टू सस्पिशियस। अब एचआर बोले हैं ये क्या हुआ, हो सकता है वो क्यों, क्या हुआ बता। आई एंश्योर टू ट्रिपल चेक माय रिपोर्ट्स बिफोर सेंडिंग इट टू माय सीनियर। देखिए, और बताइए कि भाई मैं मतलब इतनी जल्दी मतलब भरोसा नहीं कर पाऊंगा चीजों पे। क्यों? कब? जब मैं कोई फाइनल रिपोर्ट भेज रहा हूँ अपने सीनियर को, मैं 3 बार चेक करता हूँ, तो एक तरह से लग तो रही है वीकनेस क्या उसको श्योर नहीं है, बट हाँ वो कर क्या रहा है, द पर्सन इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट ही इज सेंडिंग द करेक्ट रिपोर्ट, ताकि मैनेजमेंट के पास कोई डिफॉल्ट वाली रिपोर्ट ना चला जाए, कोई गलत चीज ना चला जाए, एक तरह से वीकनेस हो। एक एग्जांपल दे मैंने खाली, आप अपने हिसाब से इसके ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है जी। आर यू गुड टू गो? All right, great. We'll end this introduction over here.